Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Al Huda School. This lecture is for grade 5, and our subject is English literature, and book is Oxford Modern English Book 5. My dear students, our first unit is The World in a War, and I request you all to open your book, page number 2, so that when I explain you the thing, you will be easily understanding all the things. So first is The World in a War. This extract is from the autobiography My Family and the Other Animals by Garnell Dorrell. ये आपके पास जो चैप्टर है वो गार्नल डॉरल करके एक राइटर है, उन्होंने अपनी आप बीती जिसका नाम मेरी फैमिली और दूसरे जानवर है, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर अपनी कुछ आप बीती बताई है. डॉरल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. ये जो गार्नल डॉरल है वो जानवरों को जो है पढ़ने का उनको बड़ा शौक़ है और वो एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर. When he was 10 years old, अपना तजर्बा बता रहे हैं कि जब वो 10 साल के थे, डॉरल, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Dorrell's grown-up brother, Larry. कहते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपने बहन भाइयों के साथ, अम्मी के साथ जो है वो कॉर्फू ग्रीस के अंदर जो है वो चले गए और वहाँ वो अपने बड़े भाई जिनका नाम लैरे है उनके साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया. It was here that Dorrell began to collect and keep animals as pets. कह रहे ये वो मौका था कि जहाँ पर डॉरल ने शुरू किया जानवरों को अपने पास जमा करना और उनको जो है ना पालने की सलाहियत अपने अंदर रखना, यानी वो पालना उनको शुरू कर दिया. अब हम ये तो गार्नल डॉरल ने एक्सट्रैक्ट बताया इसके हवाले से कि ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई. Now we are going to start the chapter. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was a green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath. यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉरल जहाँ पर रहते थे वहाँ पर एक दीवार थी जो उनके घर के पास एक पार्क, एक गार्डन जो है वहाँ पर थी, और उस दीवार की हालत को यूँ बता रहे हैं कि बहुत पुरानी दीवार थी जिसे किसी ज़माने में प्लास्टर किया था और अब जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर काई वग़ैरह जम गई है और सालों साल वहाँ पर जो है ना मिट्टी जमी हुई है और पूरी सरफेस इस तरह से लग रही है कि जैसे आप यूँ समझें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर हिस्सा उसका बहुत ख़राब है. वहाँ पर घड़े पड़े हुए हैं और प्लास्टर के जो पीसेस हैं वो निकले हैं. जो प्लास्टर के पीसेस निकले हैं वो जब निकलते हैं तो उसके नीचे लाल कलर की ईंटें मौजूद हैं जो इस दीवार की हालत को बता रही है.
The inhabitants of the wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers and the hunted. At night, toads and geckos were the hunters. Their prey was the population of stupid, absent-minded craneflies, moths of all shapes and sizes, and returned beetles hurrying with their night works. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predator. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasp searched out for caterpillars, the caterpillars and the spiders hunted for the flies, and the dragonflies fed off the spiders and the flies, and the swift multicolored wall lizard fed off everything. अब यहाँ कह रहे हैं कि उस दीवार के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते थे, और वो सुबह के अंदर कुछ टाइप्स उनकी निकलती थी और कुछ रात के वक्त निकलते थे। कुछ शिकार करने वाले थे, कुछ शिकार हो जाते थे। रात के वक्त जो है वो मेंढक का बच्चा या फिर जो छोटी छिपकली है वो हंटर्स होते थे, शिकारी होते थे, और उनके शिकार के अंदर क्या क्या होती थी, छोटी छोटी मक्खियाँ होती थी, या फिर जो है वो परवाने टाइप मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े होते थे, या जो है वो चूंटियाँ वगैरह होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो हशरात होते थे जो रात के वक्त काम करके जा रहे होते थे। इसके साथ जो है वो दिन में देखें तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कौन सा शिकारी है और कौन सा शिकार हो रहा है जानदार। हर चीज़ ऐसा लग रही थी कि दूसरी चीज़ को खा रही है। जैसे वेस्प जो है वो टिड्डे को तलाश कर रहा होता था, स्पाइडर्स को तलाश कर रहा होता था, स्पाइडर जो है वो फ्लाइज़ को ले रहा होता था खाने के लिए, मक्खियाँ खा रहे होते थे, ठीक है। और मक्खियाँ जो है, बड़ी वाली मक्खी जो है वो स्पाइडर्स को खा रही होती थी और छोटी मक्खियों को भी खा रही होती थी। इस तरह करके हर जानदार दूसरे जानदार को खा रहा होता था, और आखिर में जो छिपकली होती थी दीवार के अंदर, मल्टी कलर छिपकली जो है वो सारे इन चीज़ों को खा रही होती थी। But my favorites were the shyest member of the wall community, who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. And if you gently lifted a piece of loose plaster away from the brick, there, crouching beneath it, would be a little black scorpion an inch long, looking as though he were made out of a polished chocolate. कह रहे हैं कि जो राइटर के पसंदीदा तरीन उस दीवार के हज़ारों मेंबर्स में से एक कम्युनिटी मेंबर जो है उनमें से एक मेंबर था जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक जानदार था और उसे आम तौर पर देखा भी नहीं जा सकता था, आम नज़र में नहीं आता था। अगर किसी को देखना है तो उसके लिए जस्तजू करनी पड़ती थी। अच्छा, वो जो है ना सेवरल हंड्रेड्स यानी 100-200 की सूरत में जो है उस क्रैक के आसपास मौजूद थे। अगर आप जो है उस दीवार के किसी ख़राब प्लास्टर को हटाते थे, आराम से उस पत्थर को हटाते थे और उसके नीचे देखते थे, तो वहाँ पर ये हशरात, ये स्कॉर्पियंस जो है मौजूद होते थे। उनके साइज़ छोटे छोटे 1 इंच के 2 इंच के वो जो है वहाँ पर बच्चे वग़ैरह और स्कॉर्पियंस होते थे, ठीक है। और उनकी बनावट देखेंगे तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये चॉकलेट टाइप किसी चीज़ से बना हुआ है, यानी पॉलिश चॉकलेट से जो है ना इनको बनाया गया है। Now my dear friends, I wish you all the best of luck. The second lecture I will be explaining you later on. After understanding all these things, I request you people to open your book and see the spelling of unit number 1 and make the title page for unit number 1. You will be making the title page, unit number 1, The World in a War. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.